السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم 2 روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کی قیادت تجارتی اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے قریبی رابطوں پر متفق ہیں۔ گندم کا کوئی بحران نہیں، قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ عمران خان اور جنرل باجوہ میں اختلافات سوشل میڈیا پر ہوئے۔ صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ نئی فوجی قیادت اور عمران خان کے درمیان مذاکرات نہیں کروا رہا، تمام معاملات میں اختلافات کم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ کراچی پورٹ پر کنٹینر ریلیز نہ ہو سکے، کراچی میں تاجروں کا اسٹیٹ بینک کے باہر دھرنا۔ کراچی ٹمبر مرچنٹس گروپ کی اپیل پر شٹر ڈاؤن ہڑتال، مظاہرین کا بندرگاہوں پر رکے 6000 کنٹینرز ریلیز کرنے کا مطالبہ۔ پرویز الہی کی کامیابی، نواز شریف اور مریم پارٹی کی صوبائی قیادت پر شدید برہم۔ نواز کی رانا ثنا کو پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کی ہدایت۔ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ نون لیگ کو آج صحیح طور پر سرپرائز ملا۔ کشتی کے ذریعے کروڑوں روپے کی منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام، میری ٹائم سیکیورٹی نے سمندر میں پھینکی گئی 700 کلو گرام حشیش برآمد کر لی۔ 2 اسمگلرز اور کشتی کو حراست میں لے لیا گیا۔ کراچی میں سردی کی لہر 17 جنوری تک برقرار رہنے کا امکان، درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع۔ مری میں برف باری، سیاحوں کے لیے الرٹ جاری۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو دوسرے ون ڈے میں شکست دے دی۔ پاکستان نیوزی لینڈ میچ کے دوران گراؤنڈ میں گھسنے والے مداحوں کی رہائی کا حکم۔ PSL 8 کی افتتاحی تقریب ملتان سے کراچی منتقل ہونے کا امکان۔ گوادر میں شرپسندوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو کا کہنا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتیں گے۔ لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ گوادر دھرنے کے تسلیم شدہ مطالبات پر عمل درآمد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا دورہ میکسیکو کامیاب قرار۔ کینیڈا اور میکسیکو نے ریاست ہائے متحدہ کے خلاف ایک بڑی تجارتی جیت حاصل کی، خطے میں مزید سامان بنانے اور سیمی کنڈکٹر کی پیداوار کو بڑھانے پر اتفاق۔ کینیڈین صوبے اونٹاریو کی سپریم کورٹ کی ایرانی اثاثوں کو ضبط کرنے کی مخالفت۔ کینیڈین حکومت کے مطابق بین الاقوامی قانون کے مطابق عدالت کو اثاثے ضبط کرنے کی اجازت دینے کا اختیار نہیں ہے۔ ایرانی حکومت کو اب بھی سفارتی امارات اور استثناء حاصل ہے۔ ہوائی اڈے پر 7 ماہ سے پھنسے شامی پناہ گزین کو کینیڈا کی شہریت مل گئی۔ الکونتار کا کہنا ہے کہ پناہ تلاش کرنے کے لیے ان کی طویل جدوجہد بالآخر درست ثابت ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ میں اب جلد اپنے خاندان سے ملوں گا۔ میانمار کے فضائی طیاروں کی بھارتی علاقے میں باغیوں کے کیمپ پر بمباری۔ میانمار کے محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ میانمار کی حکومت نے متعدد بار خبردار کرنے کے بعد تنگ آ کر بڑا ایکشن لیا ہے۔ باغی تنظیم سے منسلک متعدد دہشت گردوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ امریکی ایویشن کا سسٹم ڈاؤن، ملک بھر میں پروازیں مؤخر۔ امریکی ہوابازی ادارے کے کمپیوٹر سسٹم میں خرابی کی تحقیقات۔ مستقبل میں ایسی کسی بندش کی روک تھام کو یقینی بنانے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پونے 2 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات دورے کا مقصد تجارتی، معاشی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کا فروغ ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात दौरे का मकसद तिजारती, मुआशी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन का फ़रोग़ है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की दावत पर आला सतही वफ़द के हमरा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू ज़हबी पहुँच गए। अबू ज़हबी के हवाई अड्डे पर मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर इक़्तिसादी उमूर जनाब अब्दुल्ला तौक़लमरी और पाकिस्तानी सिफारत खाने के अफसरान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दौरे में वज़ीर आज़म की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात होगी, जिसमें दोनों बिरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने और UAE में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए मौक़े पैदा करने से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के मुताबिक इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म और नायब सदर और दुबई के हाकिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए अमाराती ताजरों और सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि शेख मोहम्मद बिन ज़ैद दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि दोनों मुल्कों की क़यादत तिजारती और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए करीबी राब्तों पर मुत्तफ़िक हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में गंदम और आटे की मसनूई क़िल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफ़ाख़ोरी के हवाले से आला सतही हंगामी इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने मुल्क में गंदम के मौजूदा ज़ख़ायर का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 दिन में हुकूमत के इक़दामात की बदौलत आटे के 40 किलो के थैले की कीमत में तकरीबन 1000 रुपए की कमी वाक़ हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क में गंदम का कोई बहरान नहीं, वाफिर मिक़दार में ज़ख़ायर मौजूद हैं, नाजायज़ मुनाफ़ाख़ोरी करके मसनूई क़िल्लत पैदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि यह इलेक्शन का साल है, इलेक्शन होने चाहिए, सियासी जमातें आपस में तय कर लें कि इलेक्शन जल्द या बदेर होंगे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा में दूरी की वजह सोशल मीडिया है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया के बायस इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ के दरमियान इख्तलाफात हुए। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि वो नई फौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात नहीं करवा रहे। इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम पर उस वक्त इत्मीनान का इजहार किया था जब उन्होंने इस बारे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुशावरत की थी। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि ये इलेक्शन का साल है, इलेक्शन होने चाहिए, सियासी जमातें आपस में तय कर लें कि इलेक्शन जल्द या बदेर होंगे। अगर चंद महीनों से इलेक्शन के आगे पीछे होने का फ़र्क है तो वो भी बातचीत के जरिए तय कर लें ताकि मईशत और लोगों के फलाह के लिए काम हो सके। सदर मुमलिकत का कहना था कि मुल्क के सियासी दर्जा हरारत को कम करना नागुज़ीर है और इस मकसद के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात की पेशकश करता हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान किसी किस्म की पैगाम रसानी नहीं हुई, जबकि उनकी जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत में टाल मटोल से काम ले रही है। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान हुकूमती इत्तेहाद और PTI में कोई राब्ता नहीं हुआ और न ही मुज़ाकरात की दरख्वास्त का जवाब दिया गया। आरिफ अलवी ने साबिक आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात से मुतालिक बात करते हुए उसकी बड़ी वजह सोशल मीडिया को करार दिया है। सदर अलवी ने कहा कि सोशल मीडिया को गैर ज़रूरी अहमियत देने की वजह से गलत फहमियाँ पैदा हुई। दोनों में इख्तलाफात की दीगर वजूहात में से एक अहम वजह सोशल मीडिया था। मुल्क में फैसला साज कुव्वतें सोशल मीडिया को दुरुस्त तरीके से हैंडल नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि वो उन तमाम मामलात में इख्तलाफात कम करने की कोशिश करते रहे हैं और आइंदा भी ये अमल जारी रखेंगे। बैंकों की तरसीली कबूलियत की दस्तावेज LCs की कबूलियत ना होने के खिलाफ कराची के ताजिर सड़कों पर निकल आए। कराची टिम्बर मर्चेंट्स ग्रुप की अपील पर शटर डाउन हड़ताल की गई और टिम्बर मार्केट की तमाम दुकानें बंद रहीं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बैंकों की तरसीली कबूलियत की दस्तावेज LCs की कबूलियत ना होने के खिलाफ कराची के ताजिर सड़कों पर निकल आए। कराची टिम्बर मर्चेंट्स ग्रुप की अपील पर शटर डाउन हड़ताल की गई और टिम्बर मार्केट की तमाम दुकानें बंद रहीं। मुल्क में ज़र मुबादला की कमी के बाइस लेटर ऑफ क्रेडिट ना खोलने के खिलाफ शहर कायद में ताजिर सड़कों पर निकल आए और स्टेट बैंक के बाहर धरना दे दिया। टिम्बर मार्केट के व्यापारियों की एहतजाजी रैली स्टेट बैंक पहुंची और उसके इकदामात के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैंक के बाहर धरना दे दिया। धरने के बाइस II चंडीगढ़ रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया।
ٹمبر مارکیٹ کے व्यापारियों ने एहतजाजी रैली निकाली। शुरा ने लकड़ी की तिजारत बचाओ $2 के नारे लगाए। उन्होंने ताजिर और मईशत बचाओ के बैनर्स उठाए हुए थे। एहतजाजी रैली के बायस शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। दालों और अजनास के व्यापारियों की एहतजाजी रैली भी स्टेट बैंक पहुंच गई। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की एहतजाजी रैली में शुरा ने शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मार्केट में कायम मुख्तलिफ बैंकों की शाखों को भी बंद करा दिया और इलाके के 16 बैंकों के मैनेजर्स को ताले थमा दिए। ताजरों का कहना था कि लकड़ी के 700 कंटेनर्स 45 दिन से बंदरगाहों पर क्लियरेंस के मुंतजिर हैं। मजीद 2000 कंटेनर समंदरी रास्ते में हैं जो पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। स्टेट बैंक के अदम ताउन के खिलाफ टिम्बर की 1600 दुकानें एहतजाजन बंद कर दी गई हैं। इस मौके पर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद और ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन शर्जील गोपलानी ने कहा, देखिए हमारा माल आता है जो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं लकड़ी। पाकिस्तान में जंगलात नहीं है, इस वजह से लकड़ी के ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है। हमारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं बैंकों में पिछले 1.5 माह से। हमारे पोर्ट के ऊपर कंटेनर पड़े हैं 1.5 माह से, और कुछ कंटेनर हमारे इस वक्त समंदर के अंदर है जो कि पोर्ट पे रोज़ डेली बेसिस के ऊपर पहुंच रहे हैं। इस वक्त कमर्शियल बैंकों ने हमें डॉक्यूमेंट देना बंद कर दिया। हमारा माल सारा डैमेज और डिटेंशन में चला गया। शब्बीर भूरीवाला का कहना था, हमारी डिमांड सिंपल सी है कि जो माल इंपोर्ट होता है उसको लिए हमारी जो एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। अगर नहीं है तो कोई वाज़ेह पॉलिसी दी जाए ताकि हम इंपोर्ट भी थोड़ा सा कर्टेल करें, और जो अननेसेसरी हमारे जो पोर्ट पे माल फंसे हुए हैं जिसमें करोड़ों रुपया डैमेज लग रहा है उससे बचत की जाए। इससे महंगाई भी ज़्यादा बढ़ेगी और व्यापारियों को सारे तबाह हो जाएंगे, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पंजाब असम्बली से एतमाद 186 वोट हासिल करने के बाद अपने बयान में परवेज़ इलाही का कहना था कि नून लीग को पता चल गया है कि ये बिकाऊ माल नहीं। आज नून लीग को सही तौर पर सरप्राइज मिला है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट लेने में कामयाब होने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ पार्टी की सूबाई क़यादत पर शदीद बरहम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला का राब्ता राना सनाउल्लाह ने पार्टी कायद को पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के मामले पर दस्तयाब आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने इस्तफसार किया कि पार्टी क़यादत को आगाह किया गया था कि तहरीक इंसाफ के कम अज़ कम 7 नाराज़ अरकान PDM से राब्तों में हैं। नाराज़ अरकान कैसे वोटिंग के लिए पहुंच गए, उन्हें मैनेज क्यों नहीं किया जा सका। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मामले पर इब्तिदाई रिपोर्ट पेश करते हुए मरियम नवाज की फौरी वतन वापसी की तजवीज़ दे दी। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज फौरी वतन वापस नहीं आती तो पार्टी का नुकसान हो सकता है। नवाज शरीफ ने पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाए जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इजाज़त मिलते ही वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी जाएगी। नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से भी मजीद मशावरत करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली से एतमाद 186 वोट हासिल करने के बाद अपने बयान में परवेज़ इलाही का कहना था कि नून लीग को पता चल गया है कि ये बिकाऊ माल नहीं। आज नून लीग को सही तौर पर सरप्राइज मिला है। उनको अंदाजा नहीं था आज क्या होना है। एक ही लीडर है, वो है इमरान खान। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इमरान खान के विजन के साथ हैं। हमने चोरों को घर के अंदर तक महदूद करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और बिलाल वड़ाइच का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि शरीफ आदमी गवर्नर की इज्जत खाक में मिला दी। नून लीग की अपनी तो इज्जत ही नहीं, दलेर बनो, शिकस्त तस्लीम करो। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने कश्ती के जरिए करोड़ों रुपए की मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। खुले समंदर में ऑपरेशन के दौरान कश्ती से 20 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात कब्जे में ले ली। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने कश्ती के जरिए करोड़ों रुपए की मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। खुले समंदर में ऑपरेशन के दौरान कश्ती से 20 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात कब्जे में ले ली। 2 स्मगलर्स और कश्ती को हिरासत में ले लिया गया। कस्टम इन्फोर्समेंट के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डिप्टी DG PMSA कोमोडोर आमिर इकबाल ने बताया कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने खुले समंदर में कार्रवाई करते हुए 20 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। कोमोडोर आमिर इकबाल का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान 2 स्मगलर्स और 1 कश्ती को हिरासत में ले लिया गया।
जबकि दूसरी कश्ती में मौजूद स्मगलर्स कश्ती समेत फरार हो गए। कोमोडोर आमिर इकबाल ने मजीद बताया कि स्मगलर्स ने शवाहिद मिटाने के लिए कश्ती में मौजूद मुंशियात को समंदर में फेंक दिया। ताहम मैरीटाइम सिक्योरिटी ने समंदर में फेंकी गई 700 किलोग्राम हशीश बरामद कर ली, जिसकी मालियत 10 करोड़ रुपए के लगभग है। हुक्काम के मुताबिक जब्त शुदा मंशियात और मुलजिमान को कराची मुंतकली के बाद मजीद कार्रवाई के लिए कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। शहर कराची में यख बस्ता शुमाल मशरक की हवाएं चल पड़ी हैं, जिसके बायस सर्दी की लहर 17 जनवरी तक बरकरार रह सकती है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शहर में यह बस्ता शुमाल मशरक की हवाएं चल पड़ी हैं, जिसके बायस सर्दी की लहर 17 जनवरी तक बरकरार रह सकती है, जबकि PDMA ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी और मरी में बर्फबारी से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में 17 जनवरी तक दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। उनका ये भी कहना है कि 21 जनवरी के बाद एक और कोल्ड वेव मुल्क को लपेट में ले सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 22 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड हो रही है, जबकि कराची में आज दिन भर गर्द आलूद सर्द हवाएं चलती रहेंगी। आज हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा तक तजावुज कर सकती है। शहर में समंदर की जुनूब मगरबी सिमत की हवाएं मुकम्मल तौर पर गैर फाल हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने मजीद कहा कि 18 से 19 जनवरी के दौरान मगरबी हवाओं का एक सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होगा। मौजूदा सर्दी की लहर के दौरान कराची में पारा 5 डिग्री जबकि देही सिंध में कम से कम 3 डिग्री तक रिकॉर्ड हो सकता है। कराची का आज कम से कम दर्जा हरारत 16.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। कराची में आज सुबह के वक्त धुंध के सबब हद निगाह मुतासिर रही। धुंध की वजह से हद निगाह कम होकर 1 किलोमीटर रह गई थी। दूसरी जानिब PDMA का कहना है कि बर्फबारी के पेश नज़र मुकर्ररा तादाद से जायद गाड़ियां मरी में दाखिल नहीं होंगी। सयाह गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल, खाने पीने का सामान और ज़रूरी अशिया साथ रखें। PDMA ने कहा है कि मरी में बर्फबारी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। मुकर्ररा तादाद से जायद गाड़ियां मरी में दाखिल नहीं हो सकेंगी। एमरजेंसी की सूरत में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 69 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच जुमे को खेला जाएगा। मेहमान टीम की जानिब से दिए गए 262 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 182 रन पर ऑल आउट हो गई। एक जानिब जहां विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा, वहीं दूसरे एंड को बाबर आजम ने अपनी जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए संभाला, ताहम वो मैच को बेहतर अंदाज में खत्म ना कर सके। न्यूजीलैंड टीम में एक जबकि कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। न्यूजीलैंड की टीम दूसरा वनडे साबिक क्रिकेटर ब्रोस मेरे के शौक में बाजुओं पर स्याह पट्टी बांधकर खेल रही थी। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान ने 6 विकेट से जीता था, जबकि आखिरी मैच जुमे को कराची में ही शेड्यूल है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे वनडे मैच में ग्राउंड में दाखिल होने वाले दोनों मद्दाहों को अदालत ने 30 हजार में जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया। रिहाई के बाद मद्दाह ने कहा कि मोहम्मद रिजवान से मोहब्बत है, इसलिए मिलने के लिए बाउंड्री के अंदर गए। उसने कहा कि रिजवान की मोहब्बत में हथकड़ियां लग गई हैं, हमसे गलती हो गई, हमने कानून तोड़ा था। गिरफ्तार मद्दाह ने यह भी कहा कि रिहाई के बाद फाइनल मैच देखने भी जाएंगे। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी मुल्तान से PSL के आगाज के हक में नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का आगाज मुल्तान के बजाय कराची से किए जाने का इम्कान है। जराये ने बताया कि PSL 8 के शेड्यूल का ऐलान न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद होगा। PCB मैनेजमेंट कमेटी मुल्तान में PSL के सिर्फ राउंड मैचेस करवाने के हक में है। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा है कि गवादर में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की है। आम शहरियों को बचाने के लिए फोर्सेस की तादाद में इजाफा किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा है कि गवादर में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की है। आम शहरियों को बचाने के लिए फोर्सेस की तादाद में इजाफा किया, लेकिन तय है कि कानून हाथ में लेने वालों से कोई रियायत नहीं बरतेंगे। मौलाना हिदायतुर रहमान कानून की गिरफ्त से नहीं बचेंगे। सूबाई वजीर दाखिला ने कहा कि गवादर में 600 से ज्यादा अफराद एहतजाज कर रहे थे, इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद में इजाफा किया गया। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला गिरफ्तार नहीं हुआ तो 3 साल बाद भी गिरफ्तार हो जाता है। मौलाना हिदायतुर रहमान कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि गवादर मामले पर जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से मुलाकात हुई है।
لیاقت بلوچ سے ملاقات ہوئی، زیادہ باتیں نہیں ہوئی، جو بھی بات ہوئی سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جہاں قانون کی بات آ جاتی ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہر معاملے پر بات ہو سکتی ہے، قانون کو ہاتھ میں لینے کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا۔ قانون کے ہاتھ سے کوئی نہیں بچ سکتا، 4 دن قانون سے بھاگے گا، ہفتہ قانون سے بھاگے گا، سال قانون سے بھاگے گا، بچے گا نہیں قانون سے کوئی بھی۔ دوسری جانب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے کہا کہ پرامن جمہوری لوگوں پر طاقت کا استعمال، تشدد، گرفتاری، جھوٹے مقدمات سے مسائل میں کمی کے بجائے اضافہ ہوگا۔ ہم حق دو تحریک و حکومت کے درمیان حالات کی بہتری، مقدمات ختم، بے گناہوں کی رہائی، گوادر دھرنے کے تسلیم شدہ مطالبات پر عمل درآمد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ گوادر کا حق دو تحریک دھرنا جمہوری پرامن دھرنا تھا اور حکومت نے ان کے مطالبات اس سال قبل تسلیم بھی کیے تھے، لیکن عمل درآمد نہ کروا کر دھرنے پر حملہ کر کے حالات کو خراب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم حق دو تحریک کے قائدین سے مشورہ کر کے گوادر کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے پرامن راستہ ضرور نکالیں گے۔ قانون و آئین پر عمل ہو، ریاست حکومت و ادارے کے نظام کے مطابق چلیں، عوام کو آئین کے مطابق حق نہ دینے سے عوام دھرنے اور احتجاج پر مجبور ہوتے ہیں۔ جب عوام سے جمہوری حق چھین لیا جاتا ہے، تشدد، گولی و طاقت کے ذریعے پرامن جمہوری لوگوں کو دبایا جاتا ہے، تو عوام کہاں جائے، کس سے انصاف مانگے؟ ہم جمہوری و قانونی طریقے سے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، کسی سے رعایت نہیں مانگتے۔ کہ اگر قانون پر عمل ہو، آئین پر عمل ہو اور ریاست کے نظام کے مطابق حکومتیں عمل کریں تو پھر لوگ کیوں احتجاج کریں، لوگ کیوں سڑکوں پر آئیں، لوگ کیوں حکومتیں ہی جب وائلنس کرتی ہیں، قانون توڑتی ہیں اور قانون کے مطابق عوام کو ان کا حق نہیں دیتی تو عوام تو مجبور ہو کے سڑکوں پر آتے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔